Hello everyone. Today we are starting with economics third chapter, that is demand analysis. Before moving towards this chapter, first let's understand the meaning of demand. डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत। अगर उस चीज़ की ज़रूरत है हमें, तभी जाके उस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, एंड प्रोडक्शन हुआ मतलब उस चीज़ का डिमांड मार्केट में बढ़ेगा। क्लियर? सो डिमांड मीन्स डिज़ायर। दैट मीन्स एक डिज़ायर होती है, एक इच्छा होती है कि वो प्रोडक्ट बाय करने की। इसलिए उन्होंने कहा है कि डिमांड मीन्स डिज़ायर, या फिर एक इच्छा जब जाके वो प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? तो किसी प्रोडक्ट का डिमांड होना, उस डिमांड कब बनता है? जब उस प्रोडक्ट के लिए डिज़ायर हो, दैट मीन्स इच्छा हो, विलिंगनेस टू परचेस। सिर्फ इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो इच्छा वो गुड परचेस करने के लिए भी होनी चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट देयर शुड बी एन एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे मतलब क्या? आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप आपके डिमांड को आप एक्चुअल सेंस में परचेस करो। ठीक है? सिर्फ इच्छा है तो डिमांड बन गई? नहीं। इच्छा उसके साथ आप उसी के साथ यू नीड टू हैव अ मनी to buy that product. So when you have a desire, when you have a willingness to purchase that product, as well as when you have an ability to pay, that means when you have a money to pay, then and then only you can say that there is a demand for that product. Okay, अभी definition समझ लेते हैं कि demand for anything at a given price is the amount of it which will be brought per unit at that price. That means किसी चीज़ की डिमांड कब बनती है, कब जनरेट होती है? जब आप उसके अगेंस्ट पैसा देने के लिए रेडी होते हो। मतलब व्हेन यू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, से इट इज़ ऑफ ₹10, सो when you're buying that product, that means in return you're exchanging money, right? That means a demand is generated for that. See, for example, if a person has a desire to purchase a television set but does not have an adequate purchasing power, इसका मतलब क्या है कि किसी को फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसको टेलीविज़न टीवी सेट परचेस करना है, उसको परचेस करना है बट उसके पास पैसा नहीं है वो परचेस करने के लिए, तो फिर वो टीवी सेट के लिए डिमांड जनरेट हुई? नहीं हुई। डिमांड कब जनरेट होगी? जब उसके पास परचेसिंग पावर हो, या उसके पास पैसा हो कि वो उस चीज़ के लिए पैसा एक्सचेंज कर सकता है। सो देन ओनली डिमांड अराइजेस। Clear? So for demand you need to have a desire, you need to have a willingness, as well as you need to have a ability to pay. Now let's understand demand schedule. What is mean by demand schedule? Demand schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity demanded. इसका मतलब डिमांड शेड्यूल मतलब एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी और उतने क्वांटिटी में कितना प्राइस पे करना है उसका रिलेशन शो किया जाता है। दैट इज़ अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? मतलब एक टेबल में आपको एक साइड पे वो प्रोडक्ट की प्राइस और दूसरी साइड पे कितना क्वांटिटी परचेस किया है वो समझ में आता है। वहाँ पे उन दोनों का रिलेशन क्या है, that you will understand. Clear? So that is mean by demand schedule. Now this demand schedule is divided further in two types: individual demand schedule and market demand schedule. Let's first understand individual demand schedule. It is the quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time. मतलब इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है? सिंगल पर्सन. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सिंगल पर्सन. इफ अ सिंगल पर्सन इज डिमांडिंग एनी प्रोडक्ट, at what price? The quantity demanded and the price for that quantity demanded, the relationship between that both is individual demand schedule. Okay, we can see into the picture. That is, first column represents price of commodity X and second column represents quantity demanded of commodity.
Okay, we will understand it with a graph. If at price 10, that is rupees 10, quantity demanded is 1, single quantity is demanded at price 10. If the price reduces and it comes to rupees 8, then the quantity demanded increases by 2. If price again further reduces to 6, the quantity increases by 3. If price reduces to 4, quantity increases to 4, and if price reduces to 2, quantity increases to 5. So what we can see here is, as the price of the commodity increases, quantity demanded reduces, and inverse, when the price reduces, क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर. ये हम हमेशा अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं. अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा है तो हम उसकी क्वांटिटी कम परचेस करेंगे, और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा परचेस करते हैं. दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, अपोजिट रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में. अपोजिट रिलेशन कैसे, अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम डिमांड होगी, और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होगी. सो दिस इज़ व्हाट इट सेज, दैट देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशनशिप है, किस में, प्राइस में एंड क्वांटिटी डिमांडेड में. ओके, अगर हम ये ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट कि ग्राफ का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये क्या है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, फ्रॉम अपसाइड टूवर्ड्स, मूविंग टूवर्ड्स डाउनवर्ड. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड market demand schedule. So it is a total demand of commodity from all the consumers at a given price during a given period of time. हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या देखा कि सिंगल पर्सन की डिमांड्स कैसे चेंज होती है, कैसे वैरी होती है अकॉर्डिंग टू द प्राइस. क्लियर. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी इज दैट अगर एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स है या कस्टमर्स है तो डिमांड और प्राइस में क्या चेंजेस आ सकते हैं. लेट्स फर्स्ट गिव अ लुक टुवर्ड्स द टेबल. दैट इज, first column says price of commodity, then quantity of commodities demanded by consumer A, consumer B and consumer C, and the third column says that the total demand from all the three consumers, that is consumer A plus consumer B plus consumer C. तो तीनों कंज्यूमर्स का डिमांड टुगेदर में कितना है वो मार्केट डिमांड शेड्यूल में रिप्रेजेंट किया है. सी, अगर 10 रुपीज़ है किसी कमोडिटी की प्राइस तो शायद कंज्यूमर ए 5 यूनिट्स परचेस करेगा, कंज्यूमर बी 10 यूनिट्स परचेस करेगा और कंज्यूमर सी 15 यूनिट्स परचेस करेगा. इन तीनों का टोटल करके कितना डिमांड है, 30. क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑफ 30. दैट मीन्स अभी ये समझ लेना है कि 10 रुपीज़ में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है मार्केट में, 30 क्वांटिटी डिमांडेड है. 8 रुपीज़ अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस है तो कंज्यूमर ए 10 कमोडिटीज़ लेगा, कंज्यूमर बी 15 कमोडिटीज़ लेगा और कंज्यूमर सी 20 कमोडिटीज़ लेगा. तो इन तीनों की कॉम्बिनेशन कितनी है, 45. दैट मीन्स जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड भी ज़्यादा बढ़ रहा है. इवन इट इज़ अप्लीकेबल इन मार्केट. जैसे हमने इंडिविजुअल डिमांड में देखा कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी कम डिमांडेड है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी ज़्यादा डिमांडेड है. सेम इज़ विथ मार्केट शेड्यूल. मतलब एक से ज़्यादा कस्टमर्स की थिंकिंग भी वैसे ही है कि जैसे क्वांटिटी या कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और जैसे कमोडिटी की प्राइस ₹2 पे है देन द मार्केट डिमांड इज़ द हाईएस्ट, दैट इज़ 90. क्लियर. तो यहाँ पे भी हमें यही समझ में आता है कि देर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price of the commodity and the quantity demanded.
इनवर्स रिलेशनशिप मतलब क्या, अपोजिट रिलेशनशिप है ये. Okay, it is a opposite relationship between price and between the quantity demanded. And अगर हमने ये शेड्यूल ग्राफ देखा तो एक्स एक्सिस, अगर हमने ये ग्राफ देखा तो एक्स एक्सिस ऑलवेज शोज क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस शोज प्राइसेस इन द रुपीज. सो ग्राफ के हिसाब से क्या है, अगेन द कर्व ऑफ द डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्लियर? सो द कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स from the left to right. So this is what is all about individual demand schedule and market demand schedule. I hope you have understood this.